Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic triangle. In the revision, we have finished yesterday something about area of similar triangles, and this is one of the most important question from that particular concept, which is already solved. So that's the reason I'm not taking it. You can observe it. We have already taken in the worksheet as well. Page number 143, example number 9. Extremely important question. Please go through it from the area of similar triangles. Okay, so all that root and all the concept we have already done. Okay, the last question I think we have taken the same. Anyway, let's go for the Pythagoras theorem. In the Pythagoras theorem, solved examples are very important. Out of that example number 13, you can go through it. We have done it already. तो एक्स एंड वाई लेके हमने किया हुआ है एंड दैट वाज वेरी इजी. एल एच एस एंड आर एच एस वी हैव डन. तो हम लोग ये इसको एंड में कर लेंगे. पहले हम लोग टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज. चलो सबसे पहला क्वेश्चन है sides of a right angle triangle. Sides of a right triangle are given below. Determine which of them are right angle triangle. In case of right angle triangle, write the length of the hypotenuse. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, कैसे चेक करना है? सबसे पहले लार्जेस्ट साइड इसमें से कौन सी है? 25 है. तो 25 का स्क्वायर करो. 25 का स्क्वायर आता है 625. देन रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर करके एडिशन कर दो. 24 स्क्वायर विच विल बी 49 प्लस 576 एंड द आंसर इज 625 ओनली. So it's very clear. This implies that 25 square is equals to 7 square plus 24 square. Therefore, it is a right angle triangle, and 25 is nothing but the hypotenuse. So this is the way how you have to justify your answer. Fine, is this clear? तो easy है, कुछ ज़्यादा difficult नहीं है. नीचे देख लो. If you want to check the second one highest number, largest number is this one, because that can be possibly hypotenuse. So 8 square is equals to 64. And 3 square plus 6 square which can be equal to 9 plus 36. ठीक है, 9 plus 36 is not 64 100% but 45. तो 8 square is not equal to 3 square plus 6 square. So it's very clear. I hope you understood. It is not a right angle triangle. If it is not right angle triangle, you can easily say it is. Why we need hypotenuse then? तो इट्स फॉरगेट इट. तो यू कैन चेक अदर थिंग्स. ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है. नेक्स्ट वन इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर. क्वेश्चन नंबर सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज नथिंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, इज ऑल अबाउट something else. Let us see. In right angle triangle, right angle at P and M is a point on QR such that this is perpendicular. PM is perpendicular to MR. I think it is a similarity in right angle triangle as I remember. So if you want to prove this one, PM square, I know that we can go for similarity in right angle triangle. I hope you know about this similarity to the right angle triangle. बहुत क्वेश्चन हमने इस कॉन्सेप्ट में किए हुए हैं. तो ट्रायंगल QPR which is a large triangle is similar to triangle QMP is similar to triangle PMR. एंड आपको इसी करस्पॉन्डेंस को याद रखना है एंड जस्ट से दैट सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल. दैट्स इट, डन. तो अभी हमें पी एम स्क्वायर चाहिए. तो पी एम दो बार कौन से ट्रायंगल में? देखो पी एम यहाँ पे है एंड पी एम यहाँ पे है. तो इन दिस टू ट्रायंगल्स इफ यू यूज साइड्स इन प्रोपोर्शन यू गेट दिस आंसर. ठीक है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम थिंग है, बस सभी पूछा हुआ है. दैट्स इट. आइडिया क्लियर? बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, नॉट एट ऑल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. ट्रायंगल एबीसी इज एज वेल एज ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट सी प्रूव दैट. हाँ ओके, वेरी इजी. ये भी किया हुआ है क्वेश्चन ही हमने. ए बी राइट एंगल एट सी. तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो आई गेट ए बी स्क्वायर is equals to AC square plus BC square according to Pythagoras theorem. AC square can be, BC can be replaced by AC, तो because they are equal. तो AC square plus AC square and the answer is 2AC square. Finished. That's it. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. We are to prove that it is an right angle triangle where AC is equals to BC is given that there is a triangle ABC where AC is given equal to BC and I'm also given AB square is equals to 2AC square. What do you mean by 2AC square? AC square plus AC square, and AC is equals to BC, so it will be AC square plus BC square. And when this kind of a concept is true, when it is a right angle triangle, so therefore it is a right angle triangle. This is the hypotenuse, so AB is hypotenuse, so angle C will be equal to 90 degree. That's it. Very simple, very easy. Equilateral triangle, you know that equilateral triangle has got a very interesting property that its altitude acts as a median. You remember that.
तो in an equilateral triangle, if you remember that कि altitude is nothing but the median. Here is ABC as an equilateral triangle and altitude is median. Side of equilateral triangle is 2A. You have to find its altitude. तो AM find करना है. If this is 2A, BC also is going to be equal to 2A and then MC will be equal to A. Hope you understand. तो AM square is equals to AC square minus CM square, which can be equal to 2A the whole square minus A square, which will be 3A square as AM square. So what will be AM? AM is going to be equal to root 3A and the answer is done. So very very easy, not at all difficult. Hope you understood that. Easy है, बहुत simple है, इंटरेस्टिंग है. हाँ, लेकिन ये बात हमेशा लिखना होगा आपको कि altitude of equilateral triangle acts as a median और altitude bisect the base, ऐसे भी आप लिख सकते हो. ओके, तो ये ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा कि altitude bisect the base. तो ये बस लिखो एंड देन डन, फिनिश्ड, आंसर इज डन. 7th क्वेश्चन, स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल. ये भी किया हुआ क्वेश्चन है. कोई भी एक रोम्बस में रोम्बस है ABCD. वी नो दैट इट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट. तो आई हैव टू प्रूव दैट डी है ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये प्रूव करना है. मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इज डायगोनल. कुछ नहीं करना. यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग अननेसेसरी कर सकते हो. दैट इज एक ही ट्रायंगल में बस पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करना है. दैट इज AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. एक ही ट्रायंगल में यूज़ करना है. बाकी इजीली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. AO की जगह पे AC लाओ तो AC/2 द होल स्क्वायर, AC/2 द होल स्क्वायर प्लस OD की जगह पे BD लाओ तो BD/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट इट इज़ डन. इट इज़ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 होगा बिकॉज ये स्क्वायर ऑफ दैट. एंड 4 इफ आई शिफ्ट द अदर साइड आई गेट दैट इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर. 4AD स्क्वायर मतलब आई कैन राइट इट एज AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. And each AD can be written as the side of the rhombus because they are equal to one another. That means it is done. हमारा थ्योरम खत्म हो गया, प्रूफ खत्म हो गया. That's it. So very simple. So very simple. हमने सब कुछ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने किया हुआ है. बस आई एम रिवाइजिंग इट सो दैट you get a kind of a motivation that yes I have to do it and it's not difficult, it's easy. 8th question डायरेक्टली हमने किया हुआ है, जैसे है वैसे ही किया हुआ है. एंड फॉर दिस वी हैव डन सम कंस्ट्रक्शन. as I remember, the construction is to join AO, BO and OC, which gives me 1 2 3 4 5 6 right angle triangles to use Pythagoras theorem. तो अपना फर्स्ट पार्ट जो है उल्टा दिया हुआ है, मतलब ये नहीं लेंगे हम लोग. इफ़ आई टेक दिस साइड तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब RHS लेंगे तो आई ईजिली गेट LHS. तो RHS इज AF स्क्वायर. तो अगर मुझे AF स्क्वायर चाहिए, देख लो, AF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. BD स्क्वायर देख लो, BD कहाँ है, ये है BD. BD इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. दिख रहा है. एंड लास्ट इज CE स्क्वायर. वेरी C इज हियर. CE स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर एंड देन डन, योर वर्क इज डन. एंड वैसे ही आपको सेकंड भी करना है. जैसे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ये सॉल्व किया, वैसे ही आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे ये भी यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है एंड देन यू मेक देम इक्वल. दैट्स इट. ईजी है, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लगने के लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत सिंपल. 9th वन वेरी बेसिक क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम से आपको आंसर मिल जाएगा. सेम इज 10th वन वेरी बेसिक एंड 11th इज ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. वेरी बेसिक क्वेश्चन है. लेकिन हाँ, 11th में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. लेकिन आपको एक बात याद रखनी है 100% श्योर कि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें ऐसे ही काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो. तो 11th क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है, तो हम लोग उसको पहले देखते हैं. थोड़ा सा अलग है तो चेक करेंगे. ओके, लुक एट इट नाउ. एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due north. एयरपोर्ट है, ड्यू नॉर्थ, upward with 100 km per hour speed. Sorry, 1000 km per hour. At the same time, another airplane leaves the same airport, मतलब this point, flies west
ये ईस्ट हो गया ना इधर, चलो ठीक है। ये रहा मेरा A 1000, ये रहा वेस्ट, ठीक है। एंड इसका स्पीड कितना है 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार दे विल बी हाउ फार विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, मतलब 3/2 आवर्स। आफ्टर 3/2 आवर्स में कितनी दूर जाएंगे ये एक दूसरे के। तो 3/2 आवर्स में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 3/2 आवर्स में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा। फिर ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो 3/2 आवर्स में ये कितना करेगा, ये है उसका स्पीड। स्पीड इंटू टाइम इज गोइंग टू गिव यू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नहीं है, तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1000 इंटू 3/2, तो विच विल बी 1500, 2 5 5 15, राइट। एंड ये हो जाएगा 1200 इंटू 3/2 विच विल बी 1800 किलोमीटर। ओके, एंड यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम टू गेट दिस आंसर डन। ओके, ये थोड़ा सा वियर्ड है मुझे पता है, लेकिन जैसे भी हो पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अभी देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो पी क्यू स्क्वायर हमें फाइंड करना, मतलब पी क्यू फाइंड करना इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, राइट। तो आई गेट AP स्क्वायर एज 1500, मतलब 2251234 जीरोज, एंड 18 का स्क्वायर आता है 324, तो 3241234 ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 जीरोज तो कंफर्म है, 1 2 3 4 4 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4 एंड 3 5, तो ये आ गया पी क्यू स्क्वायर। एंड देन व्हाट इज पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ ऑल दैट 5 4 9 1 2 3 4। यू कैन कीप द आंसर एज इट इज बिकॉज 5 4 9 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बट एनी वे यू कैन कीप द आंसर एज इट इज। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो, जाने दो, छोड़ दो उसको। इफ़ यू वांट डायरेक्टली, ये जो है ना 4 जीरो, इसका 100 रूट आता है 549, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। ये डन हो गया, अंडरस्टूड। आई जस्ट होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। अलग था है ना, थोड़ा सा अलग था, कोई बात नहीं। 12th वन भी सेम है। टू पोल्स एट डिस्टेंस दिस वन स्टैंड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स पूछा है, मतलब एक ऐसे 6 है, एक 11 है, ये 12 है, 12 6 11, तो ये 12 होगा। आपको ये डिस्टेंस पूछा है, ये 12 है, ये 5 है, समझ में आ रहा है, 11 माइनस 6 5, तो अब ये 13 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, काम खत्म, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डी एन ई आर द पॉइंट्स ऑन, हाँ, ये यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। डी एन ई आर द पॉइंट्स राइट एंगल, अच्छा ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो देर इज अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ओके, डी एंड ई कहाँ पे है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन सी ए। सी ए पे डी है, सी बी पे ई है, ठीक है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, किया हुआ क्वेश्चन है। एल एच एस आर एच एस लो, आ जाएगा। एल एच एस को लिया, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, प्लस बी डी स्क्वायर क्या होगा, सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अभी देख लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और ये दोनों का एडिशन इज डी ई स्क्वायर, एंड द आंसर इज डन। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, डिफिकल्ट है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वन। ये डायग्राम है, इसलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम और ये दोनों एक तरफ रखता हूँ। चलो, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपना वाला कॉन्सेप्ट, एक्स वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 करें ना हम लोग, हाँ, एक्स वाला कॉन्सेप्ट। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ओके, बी डी, सी डी को हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब डी बी क्या आएगा, डी बी आएगा 3x। ओके, तो अगर डी बी 3x है, डी बी अगर 3x है, ये x है,
तो बी सी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। दैट्स इट। तो अभी करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि 2ab² इज इक्वल टू वॉट एवर। तो मैं RHS लेता हूँ, क्या है मेरा RHS, 2ac² प्लस bc², 2ac², so it will be equal to 2 into bracket AD² plus x², bc² is 4x², बराबर है ना। AD को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग, AD को मैं ऐसे क्यों रख रहा हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, कॉमन साइड है, ऑलवेज रिमेंबर कॉमन साइड को ऐसे रखना, AD² प्लस 2x² प्लस 16x² विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2AD² प्लस 18x², ठीक है। AD² प्लस 18x² आ गया। अभी LHS लेते हैं, क्या है देखो LHS, 2ab², सो 2 इंटू AB² क्या है, AD² प्लस DB², DB कितना है, 3x द होल स्क्वायर, तो 2AD² प्लस ये 9 इंटू 2 18x², आ गया LHS इक्वल टू RHS, काम खत्म। ये स्किल है, ये आपको डेवलप करना ही होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। ये भी 15th वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इसको आपको खुद से फिर से देख के रिवाइज करना पड़ेगा। मैं बता के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको आपको है ना प्रॉपरली उसको देख के ही रिवाइज करना पड़ेगा जो हमने देखा था। मैं मैक्सिमम आपको हिंट दे सकता हूँ या फिर क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकता हूँ, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन इतने फास्ट अगर करूँगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंस्टेड जब जहाँ हमने किया हुआ है इस क्वेश्चन को, किया हुआ है हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को, वहाँ पे जाके देखो स्लोली इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व किया हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड इवन गेट इट। नहीं फिर भी समझ में आया या फिर इफ़ यू वांट अ वीडियो टू बी सेंड फॉर दिस, उसको मैं HOTS में कंसिडर कर लूँगा। तो मुझे बता दो, मैं आपको ये HOTS के जब मैं सॉल्व करूँगा तब ये भी कंसिडर कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन इजी, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ द, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, राइट। तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड है, तो 3 टाइम्स AC करते हैं, 3 टाइम्स AC² इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड करो AD, तो 4 टाइम्स AD², ये मुझे प्रूव करना है, कुछ नहीं सिंपल है, x करो, ये हो जाएगा x/2, एल्टीट्यूड फाइंड करो, तो AD² या फिर 4 टाइम्स अपना LHS RHS भी ले सकते हो, तो 4 टाइम्स AD² इज इक्वल टू 4 टाइम्स x² माइनस x/2 द होल स्क्वायर, बराबर ना। AD² का आंसर तो यही आएगा, और इंटू 4 ऑफ कोर्स, इंटू 4, तो 4 इंटू ब्रैकेट 4x² माइनस x² अपॉन 4 आफ्टर स्क्वायरिंग, 4 गेट कैंसिल, इट इज़ 3x², एंड 3x² का मतलब क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 3AC², दैट्स इट, LHS इक्वल टू RHS, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल, नॉट इट ऑल डिफिकल्ट, राइट। तो इसको इरेज कर देते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट या फिर क्रिटिकल सम नहीं है, एक दो है जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, नो इश्यूज़। टिक द करेक्ट आंसर टू जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू रूट्स, ओके वॉट एवर, एंड 6 है, तो 90 होगा 100%। क्यों 90 होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 12, तो 12² इज इक्वल टू 144 एंड 6√3 द होल स्क्वायर प्लस 6² विच विल बी इक्वल टू 36, 36 इंटू 3, ये होगा 36 प्लस 36 इंटू 3, 108, ये होगा 144, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, 12 वाला AC इज हाइपोटेन्यूज, अगर कोई भी ट्रायंगल में AC हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये होगा 90 डिग्री, तो B क्या होगा 90, यस दैट्स इट, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंगल भी निकल जाता है, तो दैट्स नॉट द बिग डील, इट्स इजी, वेरी वेरी सिंपल। आपका ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया, अदर देन HOTS आने के चांसेस बहुत कम होते, फिर भी कंप्लीट तो करेंगे, 100% हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज आपने ट्रायंगल आपका हो जाएगा कंप्लीट ईजिली, और कोई क्वेश्चन लेके देखता हूँ, फिर भी ऐसे नहीं हो कि मिस हो जाए, नहीं हो गया, ये तो ऑप्शनल एक्सरसाइज है।
ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हमें करना पड़ता है स्पेशली ट्रायंगल के लिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ओके, जब हम रिवाइज करेंगे बोर्ड के लिए तब 100% इसको करेंगे, या फिर PT2 के लिए जब हम लोग करेंगे ना तब उसको रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ तक इनफ हो गया। यू कैन कंप्लीट योर वर्क टुडे इटसेल्फ। HOTS भी अगर मैं रात को चांस मिले तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको सेंड कर दूंगा। बाय बाय। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि लीनियर इक्वेशन के जो भी वीडियोस थे वो यूट्यूब पे नहीं थे, तो इट वाज सेंट टू यू डायरेक्टली। तो उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। तो आपको अगर यूट्यूब से कोई भी हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली आप ले सकते हो। रिवीजन के लिए बहुत सारे वीडियोस उसमें ऑलरेडी है। तो सारे जो लीनियर इक्वेशन के जो भी पहले वाले थे एकदम एकदम बिगिनिंग में किए थे, ऑल दोज वीडियोस अगेन आर अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, तो यू कैन गो थ्रू इट। ऑलरेडी आपको मे बी नोटिफिकेशन आ चुका होगा, तो आपको लग गया होगा कि अभी ये लीनियर इक्वेशन क्यों डाला हुआ है। कुछ नहीं, वो ओल्ड वीडियोस थे जिनको हमने पहले यूज़ किया था, राइट। सो नाउ यू कैन यूज़ दैट इन केस इफ़ यू वांट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू, प्लीज़ डू कंप्लीट दिस थिंग्स, सी यू टुमारो।